Good morning. Good morning, Your Holiness. Oh, Uh, namaste, namaste. welcome, namaste. And we are extremely fortunate. We are extremely और blessed हम लोग by बहुत your ही presence today. सौभाग्यशाली हैं And और आपके आज the उपस्थिति Indian हम लोग Police बहुत ही Foundation, खुश हैं कि the आप जो entire इंडियन Indian पुलिस police फाउंडेशन को fraternity is extremely blessed. और And जो आपके we द्वारा begin the आज अवसर program हमें दिया now. जा रहा है। My name is N. तो उस Ramachandran. I am कार्यक्रम the president of तो the मेरा नाम Indian एन Police रामचंद्रन Foundation, है and I और मैं shall इंडियन be पुलिस फाउंडेशन moderating का अध्यक्ष today's हूँ session. और आज To का begin कार्यक्रम को the program, मैं I मॉडरेट करूँगा। request the president, the chairman of the Indian Police Foundation, Mr. तो मैं Prakash इंडियन Singh, पुलिस फाउंडेशन to के welcome जो His चेयरमैन हैं Holiness. उनसे अनुरोध करता हूं कि परम पावन जी का His स्वागत करें। Holiness and friends, we the members of the Indian Police Foundation in particular, तो हम लोग and जो the police इंडियन पुलिस fraternity in फाउंडेशन general, के we are मेंबर हैं privileged to be blessed by you this morning. और आज आपको His पाकर Holiness, के the subject is यहाँ पर empathy and हम compassion in बहुत ही policing. प्रश्न जो खुश हैं। तो आज का जो There is a general विषय है कि impression किस that प्रकार से police पुलिस are में जो एम्पैथी normally होनी and चाहिए, expected to सहानुभूति be और जो करना है वो rude हो, in their behavior उसके विषय towards में प्रश्न the है। ordinary citizens and harsh in the treatment of criminals. और I आज would say देखें that कि these are इसके नाम पर aberrations in our working, कितनी बुरी घटनाएं which we होती have हैं और inherited हमारे जो कार्य from हैं, the जो British पुलिस Raj. के हमारे जो कार्य हैं उसमें ये चीज़ें The शामिल Police Act होती of हैं। 1861 continues to be in तो force to पुलिस this एक्ट day, and that affects 81 से our working, इस चीज़ को लेकर के चल that रही है। affects our ethos. The British wanted a police force which would be at their और beck जो and call ब्रिटिश है वो and which would enable them maintain their imperial hold over the country. And that is how they designed the police in India to be. Unfortunately, the same situation continues to this day. और This उसके has to बाद भी change. वो पुलिस जो विभाग में The चाह रहे थे police कि बदलाव should आए, reflect लेकिन वो परिस्थिति बनी the रही। democratic aspirations of the people. और जो It should be पुलिस है friendly. उसको जो It लोकतंत्र should है be उसके हिसाब humane. से चलना चाहिए। It should be लोगों के साथ compassionate. एक प्रकार से मित्र भाव रखें, करुणामयी It रखें, should be fair and just मित्रवत in its भाव treatment of रखें। the ordinary citizens. The Police Foundation has been working to bring about this transformation in the Indian police, और इंडियन पुलिस and we are फाउंडेशन है happy that इस we would be कार्य blessed को by you करने के लिए लोगों में on this शांति आ occasion, सके और and अच्छे that से our कार्य कर सकें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। faith and convictions would be reinforced. और निश्चित रूप To से quote आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, what आपके His Holiness said on one वचनों की occasion, आवश्यकता है। love तो and परम पावन जी compassion ने एक are बार कहा था necessities, कि जो not luxuries. जो प्रेम और करुणा Without वो them, आवश्यकता humanity है। cannot survive. इनके बिना जो We मानवता है must वो show these नहीं चल qualities सकती in है। our treatment of the common citizens. और तो इसलिए हमारे जो A कॉमन few words सिटीजन्स about हैं His Holiness उनमें himself. होनी चाहिए। He was तो परम born पावन in जी के बारे में मैं 1935 in a कहना peasant चाहता हूँ। family. तो उनका जन्म At the age 1935 of में 2, हुआ he became the Dalai Lama. और 2 वर्ष के जब बर्थ थे तो Dalai वो Lama दलाई means लामा के रूप में a पहचाने गए। spiritual guru तो दलाई लामा का अर्थ who है has आध्यात्मिक गुरु profound knowledge. और जिनको बहुत बड़ा At ज्ञान the age होता of है अर्थात ज्ञान 15, के सागर। he assumed full political power. तो 15 वर्ष The की Dalai Lamas are अवस्था में supposed to be उनको believed जो to be राजनीतिक जिम्मेदारी reincarnation है, of धार्मिक जिम्मेदारी है, वो प्राप्त हो गई थी। Avalokiteshvara, और an जो important परम Buddhist पावन जी उनको deity. अवलोकतेश्वर का जो In अवतार माना जाता है और 1959, बौद्ध जगत में एक following the बहुत Chinese बड़ा occupation स्थान of रखता है। Tibet, तो His Holiness 1959 में moved to India जब चीन के द्वारा and तिब्बत camped में आक्रमण किया at गया तो परम पावन Dharamshala, जी भारत आए where he continues to और stay उसके बाद to this day. भारत में आए और भारत में की धर्मशाला में आए और वहाँ He निरंतर appealed to the United तब से Nations to निरंतर consider the रूप question से of रह रहे Tibet, हैं। तो whereupon the उन्होंने General Assembly यूनाइटेड passed नेशंस resolutions on में Tibet in जो 1959, तिब्बत के 1961, बारे में and आवाज़ उठाई उनसे भी अनुरोध 1965. किया। His Holiness addressed in 1988 the European तो Parliament परम पावन ने in 1988 में Strasbourg, Germany, यूरोपियन and in जो पार्लियामेंट 1992 है the उसमें उन्होंने 77th संबोधन दिया administration था। published guidelines तो for the 1992 constitution of a में future
free Tibet. और एक प्रकार से जो टिबेटन His Holiness निर्वासन was सरकार है awarded the उसके Nobel लिए Peace Prize in संविधान बनाने के लिए 1989. कहा। और 1989 He में has परम received more पावन than जी को विश्व 150 शांति पुरस्कार से awards, सम्मानित किया गया, नोबेल honorary पुरस्कार से doctorates and सम्मानित prizes किया गया। in तो recognition of उनके his पास बहुत सारे contribution ऑनरेरी डॉक्टर्स, डॉक्टरेट और बहुत to the world. सारे उनके पास सम्मान निधि I would हैं, like बहुत to सारे conclude सम्मान प्राप्त with हैं। another quote from His Holiness where he said, तो मैं दूसरे शब्द के साथ, परम पावन जी दूसरे quote him, शब्दों के साथ मैं we यहाँ can अपनी बात को reject रखना everything बंद else, समाप्त करना चाहता हूँ। religion, तो परम पावन जी कहते हैं कि हम ideology, लोग हर चीज़ को and छोड़ all the सकते हैं, received धर्म को wisdom, छोड़ सकते हैं, आइडियोलॉजी, but we cannot escape the necessity of लेकिन love हम and लोग जो compassion. जो This प्रेम is my true करुणा religion. इसके बगैर नहीं This रह is my सकते true हैं। faith. ये मेरा यही मेरा सच्चा धर्म है, With the यही मेरा words, सच्चा I एक wish प्रकार से श्रद्धा है। everyone तो मैं across different countries could चाहता हूँ कि imbibe these इन words शब्दों के साथ and में follow विश्व में शांति रहे his advice. और परम पावन जी The की world would be जो a much better place to live. सलाह है उसको माने, और ये जो हमारा विश्व है रहने के लिए एक These words बृहद I conclude, या फिर एक and I would अच्छा very humbly स्थान request बने। His Holiness now to enlighten us with his words of wisdom. His word. तो परम पावन जी को Thank you. मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात Indeed. रखें। I feel very happy. तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि Some talk. आज जो है कुछ बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है Ideas. और अपनी बातों with को my Indian, आपके समक्ष रख रहा हूँ। Friend general, particularly police force. और ख़ास करके जो इंडियन पुलिस है उसके समक्ष आप अपनी बात को रखने का अवसर All मिला my है। life. और मैंने पूरे अपने जीवन Always with काल में some security person. तो मैं पूरे जीवन में किसी न 9 किसी की years सुरक्षा में रहा, in खासकर Tibet पुलिस की with सुरक्षा में Chinese रहा। police. तिब्बत जब 9 वर्ष चीन में Since, जब तिब्बत में रहा तो वो चाइनीज पुलिस की 59 सिक्योरिटी में रहा। 60, और with Indian 1959-60 से लेकर के with Indian जो police. भारतीय पुलिस के इंडियन पुलिस है उनकी I noticed सुरक्षा के साए में रहा। both taking care or protect me. But और मैंने देखा कि differences, दोनों ही मेरे जो है Chinese रक्षा करते हैं, police, मेरी एक प्रकार से of course, देखभाल करते Chinese हैं। communist. लेकिन अंतर ये है, Their police, तो जहाँ तक दो it चाइनीज seems कम्युनिस्ट the पुलिस की अगर मैं बात two कहूँ responsibility. One, तो उनकी taking 2 care जिम्मेदारियाँ of होती me, हैं। protect me. एक One, also is तो watching me. मेरी रक्षा करना और दूसरी मेरी देखभाल भी करना। हम That Indian police very sincere. अर्थात वो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जासूसी करना एक तरह से कह सकते हैं। तो भारतीय जो पुलिस है And वो then- बहुत ही सिंसियर रही है। China, I think, most population wise is the number one country. Most और जहाँ तक population आबादी nation. के बारे में देखें but तो चाइना no सबसे freedom. बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन वहाँ उतनी Although स्वतंत्रता very नहीं है। ancient cultural heritage. And China हालांकि historically as a पुराना Buddhist country, जो अगर देखा जाए वो but, प्राचीन उनकी सभ्यता है you see there are a lot of change there. और Basically, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। totalitarian regime. Now India, genuine, you see, freedom, democracy. और भारत में जहाँ तक देखें पूरी स्वतंत्रता है, Number two, most एक प्रकार से populous nation. पूरी Meantime, डेमोक्रेसी है, completely freedom. लोकतंत्र है और पूर्ण रूप से यहाँ स्वतंत्र है, किसी भी So, प्रकार की लोगों look, को समस्या नहीं है। India, all major world religious tradition. तो आप देखें कि भारत में विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं वो भारत में साथ साथ रहती हैं। When I met Indian Muslim, तो they जब never मैं show भारतीय some sort मुस्लिम of, से मिलता हूँ uncomfortable feeling between तो उनको कभी भी Shia and Sunni. जो भारतीय लोग हैं, Nothing. भारतीय जो सिया लोग हैं, उनके साथ रह कर के So, उनको किसी भी प्रकार की country, कोई भी दिक्कत नहीं होती है।
over 1,000 years, they और भारत देश में देखें कि पिछले कई हजार वर्षों over से 3,000 years, जैसे ahimsa. कि आप 3000 से वर्ष देखें जो अहिंसा का सिद्धांत है, करुणा का So सिद्धांत this है, country, till now, you see, carry these इन principles. चीज़ों का एक प्रकार से ये जो सिद्धांत हैं यहाँ पर व्याप्त हैं। Very fit, you see, this idea. तो जहाँ तक डेमोक्रेसी के बारे में देखें तो पूर्ण रूप से यहाँ फिट है, सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और जो भी लोग हैं जहाँ से भी हैं उन सभी का सम्मान करते हैं। South Indian, North Indian, तो भारत में जहाँ तक देखें कि साउथ इंडियन को देखें, नॉर्थ इंडियन को देखें, different script. तो यहाँ तक कि उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उनकी स्क्रिप्ट हैं। You see, very happy remain within the Union of Indian Republic. लेकिन फिर भी भारत की जो यूनियन है, भारत के जो लोग रहते हैं उनके साथ साथ बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दिक्कत के साथ साथ यहाँ रह रहे हैं। तो एक प्रकार से ये विश्व के लिए एक प्रकार से एक उदाहरण है कि अलग अलग लोग हैं, Can live. अलग अलग परंपरा के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी साथ साथ रह सकते हैं। वो अहिंसा के सिद्धांत की वजह से, करुणा के सिद्धांत की वजह से यहाँ साथ साथ रह रहे हैं। तो ये भारत की एक विशेषता है। Also, actually, protector of और तो जहाँ तक देखा जाए कि भारतीय पुलिस जो है करुणा और अहिंसा के एक रक्षक के रूप में है। I really happy with Indian police. तो मैं भारतीय पुलिस के साथ बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ उनसे। No fear. तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो किसी भी प्रकार का मुझे कोई डर नहीं होता है, भय नहीं होता है। Look down, some police. तो सुबह जब मैं उठता हूँ और नीचे अपने आवास के आसपास देखता हूँ तो कुछ पुलिस लोग, And then तो पुलिस के लोग होते हैं, मैं उनको अभिवादन करता हूँ। you see, some or say, some jokings, और mainly कभी कभी उनसे मजाक भी करता हूँ। Indian police. You see, who तो take जो care हमारे of जो me भारतीय जो day पुलिस and हैं, night, जो मेरी देखभाल करते हैं, according दिन रात principle मेरी रक्षा करते हैं, ahimsa and karuna. अहिंसा के सिद्धांत को लेकर, करुणा के सिद्धांत पर चल करके मेरी रक्षा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। Now, present generation of Indian now तो should जो pay अभी more about ancient भारत की जो वर्तमान की or thought. जो पीढ़ी है उसको जो भारत की प्राचीन परंपरा करुणा और अहिंसा और खास करके करुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको रखरखाव करना चाहिए। With my Indian friend. So तो मैं now हमेशा here अपने also, भारतीय I मित्रों want के to साथ इस tell you. चीज़ को बांटता हूँ। And then India, as I mentioned earlier, one of the biggest democratic country. Now तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो वो इस देश की रक्षा कर रहे हैं और कई हजारों वर्षों से प्राचीन जो विद्या है उसका संरक्षण कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो करुणा, अहिंसा, जो भारतीय परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, इसको विश्व को आवश्यकता है, विश्व को इसकी ज़रूरत है। In modern time, the Western world, mainly तो आज आधुनिक समय में देखें जो modern education, जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने जो है कि आधुनिक शिक्षा को बताया है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को बताया, विज्ञान को उन्होंने बताया। ये अच्छी बात है, लाभदायक है। you should try to preserve your इसके own साथ साथ culture, your आपको own tradition. जो आपकी हजारों वर्ष प्राचीन जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना चाहिए। इसको विश्व को आवश्यकता है, इसको विश्व को ज़रूरत है। Mahatma Gandhi तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो आप पिछली शताब्दी में देखें ji, कि महात्मा गांधी ने अहिंसा पर चल करके, propagate. Firstly, he और practiced इन्होंने within the country पहले तो उन्होंने खुद freedom struggle अहिंसा का through non अभ्यास किया, भारत में आज़ादी के संघर्ष में लगे रहे, many part of the world. अहिंसा पर चल करके उन्होंने
इसको अपनाया और विश्व के दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया। लोग विश्व के अन्य देशों के लोग भी महात्मा गांधी की जो अहिंसा के मार्ग जो तरीके हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को आप देखें, अमेरिका में देखें, मार्टिन लूथर किंग को देखें, तो उन्होंने अच्छी तरह से महात्मा गांधी की जो विचार थे, जो उनके रास्ता था, उसको उन्होंने अपनाया। तो उनकी जो पत्नी है, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, मार्टिन लूथर किंग, तो मार्टिन लूथर किंग की जो पत्नी, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि वो जो उनके पति है महात्मा गांधी की अहिंसा के सिद्धांत, करुणा का सिद्धांत, उसके प्रति उनका बहुत ही लगाव रहा। और वो उनका जो पहनावा है वो भी लगभग महात्मा गांधी जैसा था। तो हालांकि अब वो नहीं है, तो उन्होंने एक बार मुझसे ये जो वाकया मेरे साथ साझा किया था। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग महात्मा गांधी से प्रभावित हुए हैं, उनके सोच विचार के, उनके जो जीवन जीने की कला, उसके बारे में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय, तो जो कि महात्मा गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में रह करके आज़ादी मिली। इसके अलावा भी जो पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं। तो वो लोग अपने भारतीय परंपरा के साथ रहे, हमेशा वो अपनी इस भारतीय परंपरा के साथ रहे, उसको लेकर के चले। तो भारत में देखें विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जो स्क्रिप्ट हैं, लिपियां हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग भारतीय गणतंत्र जो लोकतंत्र है उसमें रहते हैं, अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पिछली शताब्दी में देखें कि महात्मा गांधी ने जो विश्व को एक अहिंसा का एक रास्ता भी दिखाया, तो आज के समय में भारत को चाहिए कि विश्व को वही जो भारत के जो अहिंसा का सिद्धांत है वो भी दिखाएं, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न परंपराओं के, पंथ के लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। इस बात को दुनिया को दिखाना चाहिए। तो हालांकि विश्व में अगर देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों की वजह से कल्चर, संस्कृति है, जातियां हैं, इत्यादि के आधार पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन भारत को एक उदाहरण बनना चाहिए कि भारत में देखो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, फिर भी साथ साथ रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। तो एक उदाहरण बनकर के विश्व के समक्ष पेश करना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में अगर देखें, और कि जो खासकर 21वीं शताब्दी में जो आपको एक प्रमोट करना चाहिए कि किस प्रकार के जो वास्तविक जो हमारी खुशी है लोगों के बीच में कैसे आ सके, लोगों के साथ में कैसे बांट सकें। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, लगभग 7 अरब के आसपास जो विश्व की आबादी है, 7 billion human being, actually same human being. और जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, और हम सभी लोग समान मनुष्य हैं। और अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रंग हैं, ये द्वितीय स्तर की बातें हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग समान मनुष्य हैं, मनुष्य के आधार पर हम समान हैं। और महत्वपूर्ण बात कि हमें इस पृथ्वी पर साथ साथ रहना है। तो इसलिए जो एकता की भावना है, और इस भावना के साथ, इस सिद्धांत के साथ जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो मैं यही मानता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के जो समूह है उसके साथ उससे मिल रहा हूँ। अलग अलग
धर्म होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जात रंग भेद ये द्वितीय स्तर की बातें हैं। तो सबसे पहले हमें मानवता को आगे रखना चाहिए। तो भारत की जो अहिंसा करुणा का जो सिद्धांत है, तो मैं उस सिद्धांत को लेकर के चलता हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ और मुझे तभी लगता है कि ये मेरा घर है, मेरा अपना निवास स्थान है। तो आप देखें कि विश्व में बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे वो जो एक प्रकार से मुश्किलें हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं, धर्मों को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, समुदाय को लेकर के ये बातें होती हैं। लेकिन भारत, तो हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में हैं, तो आपको भारत जो है विश्व को दिखा सकता है कि हमारे अंदर इतनी विविधताएं हैं, फिर भी हम खुशी खुशी रह सकते हैं। जात रंग भेद ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें साथ साथ रहना चाहिए। आज के जो सत्यता है, जो वैश्विक तापक्रम है, और जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, तो इस पर विश्व संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें जो पर्यावरण की बात देखें, तो वो किसी राष्ट्र के नाम पर कहीं बंटवारा नहीं होता है, सब पर उसका प्रभाव होता है। तो मैं भारतीय जो पुलिस है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो ये अपने राष्ट्र को ही नहीं बचा रहे हैं, इसके अलावा तो उस राष्ट्र को बचा रहे हैं जो कि जो विश्व को जो अहिंसा रूपी सिद्धांत है उसको चाहिए। तो आप लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, उस देश की रक्षा कर रहे हैं, इस सिद्धांत को लेकर के आप लोग चल रहे हैं। तो मैं इसलिए आपकी सबकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर रखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। क्वेश्चन एनी? Your message of hope, respect to all तो ये जो है, अहिंसा, तो आपके जो आपका जो संदेश है, अहिंसा करना का जो संदेश है, तो आज कुछ हजार लोग इस लाइव कास्ट को देख रहे हैं। अब तो आज का जो दूसरा अंग है, तो प्रश्न उत्तर का सत्र है, उसकी तरफ हम चढ़ते हैं। आप पहला प्रश्न तजिंदर सिंह लूथरा जी का है, जो कि आईजीपी चंडीगढ़ हैं, उनके प्रश्न हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। तो परम पावन जी, मैं आपके जो आपने मुझे अवसर दिया है और क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि मैं एक पुलिस आप जो अधिकारी हूँ, तो पुलिस कानून में ऐसा माना जाता है, अगर आप सहानुभूति तथा करुणा दिखाते हैं तो आपको कमज़ोर समझा जाता है, आपको बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। पुलिस में करुणा एवं सहानुभूति से हम लोग इसकी तरह से विपरीत होते हैं। हम लोगों को भावनाओं को दूर रखकर कठोर होना पड़ता है। मैं करुणा तथा सहानुभूति को पुलिस व्यवस्था में लाने के लिए उत्सुक हूँ, अतः सामान्य सोच को कैसे बदलूं? जो लोगों की सोच है वो पुलिस से कैसे बदलूं? पुलिस को कैसे बताऊं कि करुणाशील तथा सहानुभूति रहना कमजोरी नहीं है? This is my question, Your Holy Highness. More sort of rigid method. Is a method. तो जो हमारे जो तरीके होते हैं, उपाय होते हैं, तो कभी कभी ये ध्यान देना चाहिए कि वो नेगेटिव सकारात्मक है कि नकारात्मक, वो हमारे एक प्रकार से प्रेरणा पर आधारित होते हैं। तो लोगों की रक्षा करना, लोगों को ध्यान में रखना, तो कभी कभी जो आप उपाय का उपयोग करते हैं वो कभी कभी थोड़ा कठोर हो जाता है।
तो कभी कभी ज़्यादा लोगों की सुरक्षा आपको करनी हो कभी, तो ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा आप कठोर हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। तो जो तिब्बती परंपरा के अनुसार हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी परंपरा में आप देखें तो बहुत सारी इसमें एक देवी देवता इत्यादि होते हैं, रक्षक जैसे कहे जाते हैं। उनके सभी के जो आप चेहरे देखें, मूर्तियां देखें, एक प्रकार से रौद्र रूप में होते हैं, तो एक संकेतांक होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रौद्र रूप हैं, वो रौद्र रूप हमें लोगों के हित के लिए अपनाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हमारे धर्मों में भी है, तो लोगों के हित के लिए उस प्रकार से रूप अपनाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो एक पुलिस होने के नाते तो आपको कुछ परिस्थितियों में तो कभी कभी थोड़ा आपको दिखाना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है। तो लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो बड़े एक हित के लिए आप रक्षा कर रहे हैं, लोगों का रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो भी आप कार्य करें वो आपका उसमें जो उद्देश्य है, चाहे वो कभी नकारात्मक हो सकारात्मक हो, वो आपके प्रेरणा पर निर्भर करता है, आपके मोटिवेशन पर निर्भर करता है कि आप किस लिए ये रूप जो है वो अपना रहे हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार आप इस कार्य को, इस रूप को अपनाते हैं। Okay. Thank you, Your Holiness. The next question is from परम पावन जी आपका धन्यवाद। तो राकेश, अगला प्रश्न राकेश अस्थाना तो डीजी बीएसएफ से है। तो परम पावन जी सुप्रभात, मैं राकेश अस्थाना डीजी बीएसएफ हूँ। तो जहाँ तक बॉर्डर जो सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है, भारत पाक तथा भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो जवानों को हमेशा सतर्क रहना होता है, तनाव भी रहता है, क्योंकि घर से लंबे समय तक सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। परम पावन जी, आपका जो है जवानों को क्या सलाह है, आपकी जवानों को क्या सलाह है कि वे व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक तनाव को किस प्रकार से संतुलित रख सकें, तनाव को कम रख सकें तथा उसी समय आनंद भी ले सकें, अपने जो सेवा कर रहे हैं उसका भी आनंद उठा सकें। About how they can deal with the personal and professional stress and maintain alertness, calmness and joyfulness at the same time. Thank you. Yes. I often used to telling Indian force in तो मैं अक्सर Ladakh area. जो भारत खास करके जो लद्दाख क्षेत्र है, उस समय जब मैं लद्दाख में जाता हूँ तो मैं उस समय इंडियन जो आर्मी है उससे मैं मिलता हूँ। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो पुलिस हैं, जो आर्मी हैं, वो अपने वस्त्रों को पहनकर रहते हैं, हथियारों को लेकर के चलते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग हैं, तो आपके विपरीत जैसा सीमा के उस पार भी उसी प्रकार से लोग रह रहे हैं, उनके पास भी हथियार हैं, वेशभूषा में हैं। तो इस जहाँ तक भारतीय, आप लद्दाख में जो पुलिस के बल जवान हैं, जो जवान लोग तैनात हैं, तो वो आप जो तिब्बत की संस्कृति है उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। और आपका जो उद्देश्य है करुणामयी रहना चाहिए, तो अहिंसा के सिद्धांत को आपको चलना चाहिए। आप लोग जो अहिंसा के सिद्धांत को लेकर के चलें, और दूसरी तरफ भी अर्थात सीमा के पार भी जो लोग भी इसमें जो पुलिस वाले हैं, जो आर्मी हैं, वो भी किसी न किसी, वो भी अपनी सरकार के ऑर्डर के अधीन रह करके अब उस सेवा को कर रहे हैं। तो हालांकि कुछ राजनीतिक कार्य होते रहते हैं, राजनीतिक संवेदनाएं भी रहती हैं,
You तो see, दूसरी they तरफ जो consider चाइनी जो Tibetan कम्युनिस्ट हैं unique और cultural heritage, जो including Buddhism, जो हमारी जो चीनी is source of सभ्यता separation. जो हमारी So is तिब्बती the Trump सभ्यता है problem. उसको भी ध्यान में रखा। Now, although now changing, things are changing. तो आज आप So देखें you कुछ see, चीज़ें जो बदल रही हैं, same स्थितियाँ बदल रही हैं, uniformed with the weapon, but one protecting the truth. तो भले ही हथियारों को लेकर के चल रहे हों, लेकिन आपको फिर भी जो सत्यता है उसको नहीं दबाना चाहिए, कभी भी संकुचित विचारधारा का नहीं बनना चाहिए। People, Indian Army is who posted in this area. Of course, तो भारतीय firstly, सेना जो इस क्षेत्र में altitude, तैनात रहते हैं difficult, but और बड़ी मुश्किल जगह पर रहते हैं, ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, the लेकिन Indian आपका जो उद्देश्य है freedom, वो Indian culture, जो भारत की जो आज़ादी है, संस्कृति है, उसकी आप रक्षा कर रहे होते हैं indirectly protecting Tibetan और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो आप लोग जो तिब्बत की हजारों वर्ष की प्राचीन जो व्यवस्था है उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। आप अहिंसा के रूप में रह करके अहिंसा का उपयोग करते हुए इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो हालांकि आपको शारीरिक रूप से परेशानियां होती हैं, फिर भी आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको हिम्मत बना करके रखना चाहिए। 파키스탄다 방글라데시 상상도 당연히 border security force 등에들이 그래서 콘주 비게 대백감다 뒤에는 셈나로 가이니에 잠잠 공사마라 콘주 셈강에 슈이저스 가이네 대 야오름 제 콘주를 깔랍슈야다 셈나 대지 점 Okay. Then those Indian police or Indian army और जो इंडियन आर्मी और पुलिस of जो Bangladesh, पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं, a little different, but still, you see, these country not a democratic country. India, तो ये जो राष्ट्र देखें, so you protect जो भारत है पूर्ण रूप से एक लोकतंत्र देश है। democracy, freedom. The other आप side, अच्छी तरह से अपनी डेमोक्रेसी को लेकर के चल रहे हैं। totalitarian. तो दूसरे देशों पाकिस्तान में देखें तो वहाँ इतनी अच्छी जो डेमोक्रेसी नहीं है जितनी कि भारत में है, और थोड़ा सा एक उनका जो व्यवहार है सरकार का भारत जैसा नहीं है। The Indian army और जो भारतीय जवान हैं who posted in border और जो बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, सीमा जो पाकिस्तानी सीमा पर हैं, बांग्लादेशी सीमा पर हैं, तो वहाँ जो रह रहे हैं तो उसमें आप देखें तो परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हाँ, मैं पाकिस्तान का भी सम्मान करता हूँ, बांग्लादेश का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, थोड़ा सा कठोर है, ऐसा मैं मानता हूँ। Indian people should feel तो भारतीय सेना को जो भी इस क्षेत्र में हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को जो रखते हुए अपने कार्य जो भी कर रहे हैं, जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों के साथ चलें। तो हालांकि थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, तो उस समय आपको ये भावना होना चाहिए कि मैं अपनी सुख शांति को न्यौछावर कर रहा हूँ, मैं अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसे विचार रखने चाहिए, ऐसे विचारों को लेकर कर चलना चाहिए। The next question comes from Mr. तो परम पावन जी, अगला प्रश्न जो असीम अरुण जो एडीजी एडिशनल डीजीपी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका प्रश्न है। तो परम पावन जी, मेरा नाम असीम अरुण है। More than 16,000 persons per day. My question is about non-violence and police.
तो मेरा प्रश्न है जो अहिंसा और पुलिस के बारे में है। पुलिस का कार्य राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं। एक तरफ देखें, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कोई भी नागरिक किसी के प्रति हिंसा न करे, मगर कभी कभी पुलिस नागरिकों पर हिंसा करनी पड़ती है। Now, this is mandated by law. एक पुलिस को इस तरह की स्थिति को कैसे निपटें? क्या कोई पुरुष या महिला अहिंसक रह सकता है? Non-violence. As I already mentioned, you see, I spent 9 years, about 9 years, with Chinese police. तो मैंने जैसा कि मैंने कहा And then कि मैं लगभग 9 वर्ष तक चीनी पुलिस के साय में रहा, उनकी रक्षा में रहा। in India with Indian police. But और पिछले 60 सालों से मैं भारतीय पुलिस जो है उसकी सुरक्षा में रह रहा हूँ। तो जहाँ तक अंतर के रूप में देखें तो भारतीय पुलिस में एक अंतर और चीन की पुलिस में यही अंतर है कि भारत की पुलिस में जो स्वतंत्रता ज़्यादा है, लोगों की प्रति स्वतंत्रता ज़्यादा है, एक अपनी प्रिंसिपल सिद्धांतों पर चलते हैं। won't listen reasons, and then sometimes you need little bit sort of तो restriction. कभी कभी जो लोग जो नियमों पर नहीं चलते हैं तो उस समय आप कभी कभी थोड़ा कठोर रूप अपनाते हैं। So that's, you see, we cannot judge on the basis of action, but motivation. तो हम लोग कार्यों के आधार पर लोगों का जो परिणाम जो एक प्रकार से मापदंड नहीं बना सकते हैं। तो लोगों के सिद्धांत क्या हैं, लोगों के तरीके क्या हैं, सिद्धांतों पर देख करके कह सकते हैं कि कौन कैसा है। Protecting value. तो जो हमारे सिद्धांत है उसमें जो हमारी जो लोकतंत्र है उसको बचाना है, जो मूल्य हैं उनको बचाना है, स्वतंत्रता को बचाना होता है। Reason. Then तो कभी कभी कोई जो आपकी बातों को नहीं सुनता है, जो लोग हैं जो आपकी बातों को नहीं सुनते, नियमों पर जो नहीं चलते हैं, तो उस समय आप लोगों को कभी कभी जो थोड़े कठिन रूपों को अपनाना पड़ता है। कभी कभी आपको एक प्रकार से देखा जाए पुलिस को अपना जो रवैया है वो सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। तो अगला प्रश्न रघु रामन जो मेंबर इंडियन पुलिस फाउंडेशन के सदस्य हैं। तो परम पावन जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो प्रश्न है एक व्यक्तिगत है। तो मैं मानता हूँ कि पुरुष तथा महिला पुरुष जो हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे खराब स्वास्थ्य की परिस्थितियों भी अपने परिवार की भी देखभाल नहीं कर पाते हैं। उनको कभी कभी भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है, राजनीतिक दबाव में भी आ जाते हैं, कभी कभी प्रशंसा भी नहीं उनको मिलती है। ऐसी स्थिति में कोई पुलिस अधिकारी करुणामयी कैसे रह सकता है? ऐसे में दूसरों पर अपना क्रोध क्यों न निकाले, अपनी भड़ास क्यों न निकाले? इतनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं तो वो दूसरों पर भड़ास निकालते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों ना करें? How do we expect that human being to display empathy and compassion given the amount of stress, strain, pressure that they are operating under? Now here, naturally, you see, thinking from holistic way. तो अगर आप सार्वभौमिक रूप से अगर देखें, इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो कि उदाहरण के रूप में, तो जब मैं अपने टीचर से अध्ययन प्राप्त कर रहा था, शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो मेरे जो शिक्षक जो थे तो हमेशा 2 कोड़े रखते थे। या मेरे लिए कोड़े रखते थे। तो ये जो उनका विचार था, तो उस समय मुझे उनसे डर लगता था। तो बाद में लगा कि वास्तव में ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए है, अच्छे उद्देश्य के लिए रखे हुए हैं। तो जो भी मानव समाज है, तो उस समाज में कभी कभी कुछ खराब लोग तो होते ही हैं। कुछ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी जो शिक्षा है,
about non-violence. तो हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ध्यान देना चाहिए, करुणा पर ध्यान देना चाहिए, अहिंसा पर ध्यान देना चाहिए। mainly introduced तो by आज आप British, भारत as की I mentioned जो earlier. शिक्षा So, पद्धति है वो Indian ब्रिटिश के education द्वारा system should include ब्रिटिश के moral द्वारा principles, दी गई है। तो करुणा, इसलिए these जो things. भारतीय शिक्षा That's पद्धति उसमें one way. करुणा, मैत्री, Then ये one way, ये जो इसके जो you संदेश see, हैं उनको in रखना society, you चाहिए, see that some उनको भी people डालना चाहिए। little bit naughty. इसके अलावा भी So तो कुछ लोग they जो won't listen, एक प्रकार से reason. चंचल टाइप के होते So हैं, sometimes जो आपके जो little कार्य हैं, जो सत्यता है उसको नहीं restriction सुनते हैं, तो or उनके प्रति थोड़ी सी harsh एक method. प्रकार से जो कठोर रूप है उसको भी अपनाने में कोई बुराई नहीं है। So, so I think thinking the holistic way, and then Indian police, now as I mentioned earlier, तो अगर आप पूर्ण रूप से देखो, एक बड़े रूप में अगर आप सोचते हैं तो भारतीय पुलिस में जो डेमोक्रेसी है, एक दूसरों को रक्षा करने के जो तरीके हैं, वो सभी चीज़ें निहित होती हैं। तो कभी कभी कुछ खराब लोग आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति आपको सख्ती दिखानी चाहिए, और आपका जो उद्देश्य अच्छे के लिए होता है। आप जो अपना जो जटिल या कठिन रूप दिखा रहे हैं, थोड़ा कठोर रूप दिखा रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपनी कहानी को बताना चाहता हूँ। तो जब मैं छोटा था तब मैं काफ़ी एक प्रकार से चतुर था, और मैं अपने टीचर को देखता था। और तो मेरे जो तो वो भी हमारे क्षेत्र से ही थे, मेरे जन्म स्थान के क्षेत्र से थे। तो कभी कभी मैं उनके कंधों पर बैठ जाता था। And I asked that my teacher, you should read. और मैं अपने टीचर से कहता हूँ आपको पढ़ना चाहिए। Later, you see another teacher. जब मैं छोटा था उस समय, फिर उसके बाद मेरे दूसरे गुरु आए, टीचर आए, शिक्षक आए। See, this young boy, the young lama, quite clever. So you should also the protect. और उन्होंने कहा कि जो छोटे जो दलाई लामा हैं, जो मेरे गुरु ठिजा रिम्पोछे, और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके कंधे पर बैठ जाता था। तो दलाई लामा भी बच्चे हैं और बहुत चतुर भी हैं। He sometimes find it difficult to remain to remain stern. So like that. So therefore, the purpose is the key point. So all तो मुख्य रूप से आपका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है, आप किस रूप को जो आप क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। India's sort of culture, India's sort of also the nation. तो जो पुलिस है वो भारत के राष्ट्र जो देश को बचा रहे हैं, कल्चर को बचा रहे हैं, ये पुलिस का काम है, सेना का काम है, हमेशा ये रहता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको कठोरता का उपयोग करना पड़ता है, वो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि जहाँ तक देखा जाए तो ये अच्छाई के लिए होते हैं। आप अपने सिद्धांतों पर जरूर रहें, सिद्धांतों पर चलते हुए कठोरता को अपनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। The next question is from श्रीमती सतवंत। तो अगला जो प्रश्न है श्रीमती सतवंत अठवाल, IGP, इनकी तरफ से है। परम पावन जी, आपको सुप्रभात। Being from Himachal, Holiness, it's been my blessed fortune to be in your presence. तो मैं हिमाचल से हूँ और कई बार मैं आपके आवास पर भी मुझे आशीर्वाद मिला। तो आज सुबह सुबह आपसे सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मेरा दिन अच्छा हो गया। तो मेरा प्रश्न है कि परम पावन जी, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा क्यों? बाहरी स्थिति जो भी हो, आंतरिक सुख नष्ट न हो, इसका क्या उपाय है? Loves compassion, करुणा।
तो जितने भी जीवधारी हैं वो करुणा को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी हैं, And now, according to चिड़ियाएँ, scientists, पशु since पक्षी भी, we are सभी लोग social करुणा को animal, पसंद करते हैं। social तो वैज्ञानिक animal, लोग कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी even हैं। physically, you see, individual sort of life depend on group और जो मनुष्यों का जो जीवन है, जो व्यक्तिगत जीवन है, वो हमारे समाज पर निर्भर है। समाज की वजह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। इसलिए हम मनुष्य लोग जो सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग बचपन से ही जो हमारा जीवन है लोगों पर निर्भर है। हमारे जो समुदाय है उस पर, उसकी वजह से हमारा जीवन है। तो इसलिए अपने हमारे जो समुदाय है उसको उसके प्रति सहानुभूति रखना, ये अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लाभ के लिए है, अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन, अच्छे जीवन के लिए है। तो जहाँ तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो दूसरों के हित है, दूसरों का लाभ है, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। complete selfish think oneself, then that person, अगर आप स्वार्थी रहेंगे, तो स्वार्थी अगर आप रहते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं होता, सुखी व्यक्ति नहीं रह सकता है। ये सत्य बात है। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। modern education, तो आप आज के समय में आधुनिक शिक्षा में अगर देखें तो उस आधुनिक शिक्षा में जो हमारे जो मानव के मूलभूत जो तरीके हैं, जो मूलभूत बातें हैं, करुणा, मैत्री, उसकी कमी है। successful life depend on तो हमें अपने पूरे जीवन को अच्छा जीवन जीना है, तो वो संपूर्ण जीवन हमारे समुदाय पर निर्भर करता है। something very essential. So this not through तो ये religion बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने परिवार और उसकी तरफ देखें। and through education. अगर आप कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं, शिक्षा का उपयोग अगर करते हैं, Modern education lacking. तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और इन चीज़ों की जो आवश्यकता है या फिर जो कमी है, मैं देखता हूँ कि हमारी शिक्षा में इनकी कमी है। तो भारत का जो प्राचीन सिद्धांत, करुणा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत और आधुनिक शिक्षा, जो प्राचीन विद्या है और उसके साथ साथ जो आधुनिक जो शिक्षा है, उनको साथ साथ जोड़ना चाहिए। And then तो आधुनिक शिक्षा में इनके बारे में बहुत बातें नहीं की जाती हैं। तो जब भी कोई समस्या होती है, तो कोई मुश्किल होती है, तो उस समय हम ईश्वर का नाम लेते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो उनसे कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें पहले जो कारणों को तलाशना चाहिए कि किस वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो हमें अपने ज्ञान, अपनी विद्या के द्वारा उसको समझना चाहिए। तो भारत की जो पिछले हजारों वर्षों की प्राचीन विद्या है, समथ है, विपश्यना है, और जो परीक्षण करने की जो विधि है, विपश्यना का जो तरीका है, उसका उपयोग करना चाहिए। modern education mainly oriented about usually I tell also the physical hygiene. तो मैं अक्सर जो हम लोग अपने शरीर को रख रखाव के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से जो हजारों वर्षों से जो प्राचीन भारतीय विद्या है, वो हमारे मानसिक सुख के लिए है। इन दोनों को हमें जोड़ना चाहिए। Not in the name of religion. केवल धर्मों के नाम पर, धर्मों के नाम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो इसको एक धर्म निरपेक्ष होकर के एक अपनी, तो जो भारत की जो व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष की जो व्यवस्था है, चाहे वो धर्म को मानता हो या न मानता हो, अगर आप सुखी व्यक्ति होना चाहते हैं, आप अगर सुखी परिवार चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आंतरिक सुख चाहते हैं, आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आंतरिक सुख की आवश्यकता है। चाहे आप ईश्वरवादी हों, अनिश्वरवादी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन जो धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धर्म की जहाँ तक बात करूँ, वो व्यक्तिगत है, और करुणा, मैत्री, और ये हमारे समुदाय के लिए है। संपूर्ण जो समुदाय उसकी इसकी आवश्यकता है। सभी लोगों को
इसकी आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक धर्म है वो लोग अलग बात है, लोग अपने अपने हिसाब से किसी भी परंपरा The धर्म को next मान सकते question हैं। comes from तो Mr. अगला प्रश्न Rashesh Shah, राकेश President शाह of the Indian जो Police मेंबर Foundation. इंडियन पुलिस फाउंडेशन से हैं, Member उनका of the प्रश्न है। Indian Police Foundation. Thank you, Your Holiness. It's a great तो परम honor पावन and जी very आपका बहुत gratifying धन्यवाद। to तो see आज you, hear वास्तव you. में मेरे लिए It's always a सौभाग्य pleasure. Thank you बात for है, this आपको देख opportunity. पा रहा हूँ, सुन रहा The one हूँ। question इस I अवसर have के लिए is, when we मेरा बहुत discuss ही about the police force and तो एक empathy, प्रश्न होता है जब जब unfortunately, तो the पहले मेरे दो police प्रश्न force, the हैं। तो individuals पहले जब come पुलिस वालों के across अंदर some of the very bad जब आप देखें कि side of बहुत human nature, जो जघन्य basic स्थितियां crime, पैदा basic हो bad जाती हैं, जब behavior. कोई जो क्राइम Unfortunately, होते by the हैं, very nature व्यवहार of the हैं, job, they get exposed to और the जो dark हमारे जो कार्य underbelly हैं, of तो human कभी कभी ऐसे behavior. बुराइयों से, In the जो मानव face के of बुरे that, in the व्यवहार हैं, constant उनसे exposure गुजरना to पड़ता this, है। how does an तो ऐसी individual जो maintain भयावह empathy, स्थिति जब positivity, होती है, and तो ऐसे faith पुलिस in the वालों better nature of human को being? मानव की इस It is a जघन्य परिस्थिति constant कैसे balance. So how do you निजात पानी counterbalance चाहिए, it as a पहला police प्रश्न। दूसरा, or as a कैसे police person? सकारात्मक एवं Thank you. आशावादी रह सकता है? Some people, you see, I think because of, you see, there are also circumstances, under circumstances, there तो मैं मानता हूँ कि परिस्थितियों के, जो लोगों की जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, too much selfish. तो कभी कभी बहुत से लोग चतुर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। You need, according to that circumstances, sometimes you need little restricted way. तो ऐसी स्थिति में कभी कभी थोड़ी कठोरता का उपयोग करना पड़ता है। With sincere motivation, compassionate तो motivation. ये जो है, हालांकि जो आपका उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो लोग जो आपके एक जो नियम कानून हैं, जो तरीके हैं, जो ये भी एक आपके धर्म के अभ्यास हैं, वो भी जुड़े होने चाहिए कि आप किस नैतिकता पर चलें, वो भी ध्यान देना चाहिए। जो आपके मोटिवेशन है, और आपका जो मोटिवेशन कंपैशनेट है कि नहीं, करुणामयी है कि नहीं, or a stupid, you see, person. और जो कुछ बुरे लोग होते हैं, तो उसके प्रति आप तो थोड़ा सा कठोर जो तरीका है उसको आप अपना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। Thank you, Your Holiness. The next question is from Sri Sanjay Hazarika, member, Police Foundation. तो अगला प्रश्न संजय हजारिका का है। संजय हजारिका जी। तो परम पावन जी, आपको टाशी दिलेक, तो मैं आपके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मेरा प्रश्न है, आपके जो दृष्टिकोण में ये जो एक अगर आप संदेश देना चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर को रखनी चाहिए, और वो जो पब्लिक, जो जनता का जो विश्वास है वो जीत सकें, और जो जिस समय अपने कार्य को कर रहे हैं तो लोगों को वो ठीक से रख सकें, लोगों का विश्वास जीत सकें, उसके लिए आपका क्या विचार है? Since we have this intelligence, so human, तो हमारे अंदर ये जो बुद्धि है, जो एक प्रकार से ज्ञान है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। sense of compassion, combine these two. तो अगर आप अपनी बुद्धि को करुणा के साथ जोड़ेंगे, दूसरों के हित के लिए, हित को साधने के लिए अगर जोड़ते हैं, I think generally Indian public, I think, तो सामान्य तौर पर भारतीय जो जनता है वो पुलिस पर विश्वास रखती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, और जहाँ तक पुलिस है वो भी उनके जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक प्रकार से तानाशाही करें, ऐसा नहीं होता है। वो उनके भी अपने पुलिस के सिद्धांत, उसके हिसाब से वो भी अपना पालन करते हैं। और मुख्य रूप से जो मानव के जो इंटेलिजेंस हैं, वो संपूर्णता को देखते हैं, उस सिचुएशन को
को समझते हैं और फिर परिस्थितियों के अनुसार अहिंसा, तो अपने नियमों को बिना छोड़ते हुए अहिंसा करना को बिना छोड़े हुए आपको कुछ जो एक्शन लेने पड़ते हैं, जो आपको कदम उठाने पड़ते हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, वो परिस्थिति क्या है उस तरफ से आप एक प्रकार से सोच रहे हैं। Yes. The next question, Your Holiness, is from तो अगला प्रश्न जो मिस्टर ML कुमावत जी हैं, जो फॉर्मल जो पूर्व जो स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मर DG BSF रहे हैं, इनके प्रश्न जो तो ML कुमावत। I think Sri Kumawat is not reachable. I will ask the question, Your Holiness. तो परम पावन जी उनकी तरफ से मैं प्रश्न पूछूंगा। तो उनका प्रश्न, कुमावत जी का प्रश्न है कि Mahatma Gandhi once said, तो एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मैं पुलिस फोर्स को मेंटेन करता हूँ और तो ये जो बॉडी जो रिफॉर्मर्स की एक रूप से काय होगा। तो मेरा प्रश्न है कि जो पुलिस को जो महात्मा गांधी जी का जो एक सोच थी, जो उनका विचार था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार था, उनके हिसाब से पुलिस कैसे कार्य कर सके। ऐसे सॉरो फ्री कंट्री, तो ये बहुत ही आसान है, प्रैक्टिकल है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, so in certain individual a little bit तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, नटखट होते हैं या अजीब तरह के होते हैं या अपने जो स्वार्थी होते हैं, संकीर्ण विचारधारा के होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। way of life affect society, then तो उनके व्यवहार की वजह से समाज पर एक छाप पड़ती है। तो फिर भी हम इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो समाज में शांति कैसे स्थापित हो सके, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखते हैं, समाज में शांति स्थापना हो, समाज में सद्भाव हो। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ लोगों पर उठाने पड़ते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक भारतीय पुलिस करती भी है। तो ज़्यादातर जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, वहाँ की पुलिस का जो कार्य है, तो कभी कभी थोड़े रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, कुछ उनकी बाधाएं होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, तो उस कदम को उठाना पड़ता है। Now since I came, तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ, 1959 से जब से मैं आया, loves this country and also तो मुझे भारत देश से प्रेम है और भारतीय पुलिस को भी मैं पसंद करता हूँ, भारतीय आर्मी को, जो भी भारत के जो रक्षा कर्मी, उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ। So as a sort of a big country and your neighbor is sometimes it's difficult. So तो एक बड़े राष्ट्र होने के नाते कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं। you have to act according the तो पुलिस को परिस्थिति के हिसाब से अपने कार्यों को करना चाहिए। अपनी जो उनका कार्य है उसका एक प्रकार से अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। some area
is a little bit sort of what's the तो जैसे कि आप मणिपुर में देखें तो कुछ जगह पर कुछ मुश्किलें हैं उस एरिया में, कुछ लोगों के द्वारा इस परिस्थिति बनी हुई है। तो ऐसी जगह पर अगर आप कुछ जटिल कदम, कठोर कदम उठाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपका जो कठोर कदम उठाया गया वो अच्छाई के लिए उठाया गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो परम पावन जी आपका धन्यवाद। तो आज का अंतिम प्रश्न प्रोफेसर अरविंद वर्मा जी का है, जो मेंबर इंडियन पुलिस फाउंडेशन के सदस्य हैं। तो जो इंडियाना जो यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में प्रोफेसर हैं। तो परम पावन जी आपके आशीर्वादों को पाकर के बहुत ही खुश हूँ। जब पिछले वर्ष जब समय आए थे वहाँ, तो मैं वहाँ इंडियन यूनिवर्सिटी पुलिस के बारे में पढ़ाता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि तो जो शांति कैसे स्थापित की जा सके। But the police deals with this suffering with violence by sending the offender to jail in the name of trying to जो लोग पुलिस या जेलों में भेज देती है, फिर उनको पुलिस जो उनके जो क्राइम है वो कम हो सकें। तो मैं नहीं मानता हूँ किसी को जेल में रखने से क्राइम कम हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि बौद्ध जो तरीके से जो क्या बौद्ध तरीके से आप जो पुलिसों को जेल में रख देंगे और जिससे कि क्राइम जो है कम हो सके, मोरल कंपैशन जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो सके। तो मुझे नहीं पता कि बौद्ध धर्म के अनुसार क्या हो सकता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो धर्म है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है और समाज में जो नास्तिक भी होते हैं, आस्तिक भी होते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो जहाँ तक समाज की बात करूँ तो उसको एक मानव समाज है, मानव समाज के रूप में मानना चाहिए। As I often mentioned, here also I mentioned education system. You see, तो मैं अक्सर कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, उसके प्रति हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष तरीका है उसको अपनाना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन। सो आपको जो है एक नियम कानून में रहना चाहिए उसके आधार पर। और जो अगर इस प्रकार के जो छात्र हैं, छात्रा हैं, इस प्रकार के समाज में अगर आते हैं, उनको अगर आप सिखाते हैं, ज़्यादा करुणामयी अगर जो छात्र छात्राएं बनते हैं तो बहुत समाज में अच्छा होगा। तो मैं जैसा कि पूर्व में भी कहा कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, हमें तो हमारी शिक्षा पर जो प्रणाली है उसमें आंतरिक मूल्यों का ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। Becoming more, what's it, indisciplined one, and then तो कुछ लोग होते हैं जो कि नियम कानून को नहीं मानते, जो कि तो ऐसे लोगों पर कभी आपको जो आपकी जो भूमिका है तो थोड़ी कठिन रखनी चाहिए, जटिल रखनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ जो मृत्यु दंड है, तो मैं हमेशा मृत्यु दंड के खिलाफ रहता हूँ। Even life, तो जेल में रखने से इवन जो एक प्रकार से आजीवन कारावास दे देना भी कठिन है, लेकिन जहाँ तक मृत्यु दंड है मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि इसको So I think death sentence I feel not right. और जहाँ तक मृत्यु दंड है उसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति एक बार अगर वो कुछ गलतियाँ कर दे तो वो बदल सकता है, बदलने के एक प्रकार से अवसर उसको देना चाहिए, जो शिक्षा के द्वारा अलग अलग तरीके से उस माहौल के हिसाब से भी बदल सकता है। Then Buddhism, I think some other religion, you see, तो जहाँ तक
बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों के बारे में अगर कहूँ तो उसमें भी कहा जाता है कि किस प्रकार से इन जो बुराइयों को बचना चाहिए। और बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से कि अपने जो हमारा चित्त है उसको कैसे प्रशिक्षित करें। और बौद्ध धर्म में उसके लॉजिक है जो एक प्रकार उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी जो क्वांटम फिजिक्स, जो विज्ञान में क्वांटम फिजिक्स के बारे में कहा जाता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी जो हमारे चित्त को परीक्षण कैसे करें, कैसे बदलें, इसकी भी व्यवस्था है। Explanation of idea how to deal with, you see, criminal. तो किस प्रकार से जो क्रिमिनल्स हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में भी सोच विचार चिंतन करना चाहिए। Once you accept monk's rule, तो उदाहरण के रूप में जब आप भिक्षु बन जाते हैं नियम, तो हम भिक्षु लोगों के, तो हम लोगों के 253 जो विनय के नियम होते हैं, और जहाँ तक जो सबसे जो हमारे नियम जो हैं बहुत ही कठिन होते हैं। तो और ओके, थैंक यू योर होलीनेस। तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो संदेश है, जो पुलिस को जो दिया गया, वो बहुत ही आसान रहा, वो बहुत अच्छा रहा और बहुत ही बृहद भी रहा। तो आपका जो करुणा का, माइंडफुलनेस, जो सब सहानुभूति का, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए लंबे समय तक लाभदायक होगा। लेकिन जीवन में पुलिस के जीवन काल में आपको सुन पाना बहुत हम लोगों के लिए जो अवसर है बहुत ही कम समय मिलता है। तो आज जो समय मिला बहुत ही हम लोगों के लिए सुखदायी है। तो हम इंडियन पुलिस फाउंडेशन की तरफ से और पूरे जो भारत में संपूर्ण पुलिस की तरफ से हम आपके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद को हम ढूंढ रहे हैं और जो आपने ये अवसर हमें प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, भविष्य में कभी मुलाकात होगी, आपके सलाह प्राप्त करूंगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो मैं सभी आपके जो कार्यालय है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे इन चीज़ों को व्यवस्था की। तो अमिताभ माथुर जी, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के विभिन्न राष्ट्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो भी इसको सुन रहे हैं और जो भी पुलिस वाले शामिल हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई वांट तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी के अनुमोदन करता हूँ और भारतीय पुलिस, भारतीय सेना की जो कि दिन रात हमारा जो पुलिस जो है, भारतीय पुलिस मेरी दिन रात रक्षा कर रही है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जब भी मैं पुलिस से मिलता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से उन पर मेरा विश्वास रहता है, वो भी मेरे पर विश्वास करते हैं। Every morning, I walk out and then तो आजकल जब भी मैं सुबह जब टहलता हूँ तो पुलिस वालों से मिलता हूँ, greetings and some jokes. तो उनका मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ, मजाक करता हूँ। Very peaceful. तो भारतीय पुलिस बड़ी शांतिमय है, अच्छी है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। Then so Indian police, I think really police for peace, really. तो मुझे लगता है कि जो भारतीय पुलिस है वो शांति के लिए है, अच्छे कार्य कर रहे हैं। So thank you. तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Your Holiness, for your blessings and good words. Thank you. Bye bye. बाय बाय, धन्यवाद।